A very good morning to class 5th. As you all know, in yesterday's lecture, we have completed our exercise 12.7, and with this exercise, we have completed our chapter 12. Clear? यस्टरडे कल वाले लेक्चर में बेटा हमने क्या किया है, हमने अपना चैप्टर 12 जो है वो कंप्लीट किया है, राइट. So after completion of the chapter, now it's the time of the worksheet. Means what we do today? Worksheet. Before the worksheet, what you have studied in chapter 12? In chapter 12, we have studied about the prices or about the money, bill, about the profit and loss, these type of things. Now we will do the worksheet. In this worksheet there are 10 questions. Before started, first question is subtract rupees 72,295 from 1,35,732. In this, the first question is about subtracting the मनी. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, आपको मनी को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट. वर्कशीट 12. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ₹1,35,732 से सब्ट्रैक्ट करना है आपको ₹72,295 minus here come rupee 12 minus 5 7, again this become 2, 12 minus 9 3, 6 minus 2 4, 5 minus 2 3, and 13 minus 7 6. So answer is ₹63,437. Clear this? Now the second question is about adding the money. What you add? ₹1,32,762 plus ₹2,23,575. Right? So what we do? Firstly we will arrange them. 1,32,762. अब सेकेंड नंबर जब आप राइट करते हो, फ्रॉम राइट साइड स्टार्ट करो. 5 नाउ 7 5 3 2 2. ऐड 2 plus 5 7, 6 plus 7 13, 3 1 goes carry. 7 plus 5 12, 12 plus 1 13, 3 1. 2 plus 3 5, 5 plus 1 6, 3 plus 2 5, and 1 plus 2 3. Rupees 3,56,337. क्लियर? क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड बहुत इजी था. सिंपली आपको मनी को सब्ट्रैक्ट और ऐड करना था. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज the cost of 25 items is ₹45,000. Now what is the cost of 32 such items? So in this statement it's simply you have to here apply the unitary method. देखो यहाँ पे जो cost given है वो आपको किसी और items की given है, number of items की, और जो आपको find out करनी है वो another number of items है. Clear? So in this what you will do, we will apply unitary method, in which firstly we will find the cost of one item, then we find the cost of number of items. So third question is given है आपको cost of 25 items. What is the cost? ₹45,000. Now
cost of one item देखो more to 1, it means what we will do here, we will divide by 25. Now firstly you will divide, so 45,000 25 टू ज़ा क्या होता है 50, so firstly 25, 5 minus 5 0, 4 minus 2 2, take down this 0, we know 25 8 ज़ा 200 होता है. If you want you can multiply and check. After this 2 zeros left, we will put here 2 zeros. So cost of one item is rupees 800. Now we have to find the cost of 32 items, and for this it simply means rupees 1800 multiply with 32. Clear? Multiply and find the amount. 1800 multiply with 32. We will multiply and write down the amount. Clear? This is which method? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, क्योंकि यहाँ पे फर्स्टली हम डिवीज़न कर रहे हैं, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन मीन्स फर्स्टली हम एक आइटम की कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद n नंबर ऑफ आइटम्स की कॉस्ट. राइट? नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. A book cost rupees 415. Find what is the cost of 45 such books. So it is also simple. Question number 4. Cost of one book. How much? Rupees 415. You have to find the cost of 45 books. It means one too many, so rupees 415 multiply with 45. Multiply the digits and find the answer. Clear? The question number 4 simple है, just you have to multiply the answer. After this, the fifth question is estimate by rounding off to nearest 1000 rupees, and we have to find 123,985 minus rupees 29,299. तो फर्स्टली क्या करना है हमें, नियरेस्ट 1000. राइट? तो देखो 1s 10s 100 1000 से पहले क्या आता है आपका 100 प्लेस. इट मीन्स आपको 100 प्लेस की डिजिट चेक करनी है. 1s 10s 100 पे क्या आपका 9 ग्रेटर देन 5, so 3 plus 1 1 2 3 plus 1 4, and these 3 zeros. Right? 1,24,000. Now after this second number 29,299, 1s 10s 100 2. राइट? 2 क्या है जो आपका 5 से लेस है, तो ये क्या हो जाएगा रुपीज़ 29,000. राइट? नाउ वी हैव टू एस्टिमेट, सो यू विल राइट हेयर एस्टिमेटेड डिफरेंस. सब्ट्रैक्ट करें तो आप क्या फाइंड कर रहे हो, डिफरेंस. रुपीज़ 1,24,000 subtract rupees 29,000. Rupees 3 zeros as it is. 14 minus 9
5 and 11 minus 2 9. So estimated difference equals to 95,000. Clear this question? Question number 5th. यहाँ पे आपको simply nearest 1000 में करना था. Now question number 6. Estimate by rounding off to nearest 100 rupees. Now in question number 6 you have to round off with rupees 100. So 6 1. You will write here nearest 100 rupees. Right. So first is rupees 1, 12,780 plus rupees 18,290. So देखो 100 रुपीज़ में करना है, ones, tens, 100. So we have to convert nearest 100 रुपीज़. तो 100 से पहले क्या आता है बेटा? टेंस. So हम चेक करेंगे डिजिट एट द प्लेस ऑफ टेंस. राइट. So 1 by 1 ones टेंस प्लेस पे क्या है? 8 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 5. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ 100 प्लेस पे आपको चेंज करना है 7 + 1 यानी 12,800 रुपीज़. 12,800. नेक्स्ट रुपीज़ 18290 ones tens. Again 9 also greater than 5. So it becomes rupees 18,300. Clear? Now add. It means what we have to find? The estimated sum. Now add rupees 12,800 plus rupees 18,300. Add and find the estimated sum. Clear the question? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. You have to just find the round off or nearest 100 rupees and then add. Next question is question number 7. A dealer purchased an item for rupees 2,500 and sold it 2,485. Find his loss. So formula of loss, CP minus SP. Question number 7. Purchased means उसने खरीदा है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका cost price. Cost price is rupees 2,500. उसके बाद आता है आपका sold it, and for sold it means that is selling price, rupees 2,485. Now what we have to find? The loss. Loss means CP minus SP. CP is rupees 2,500, SP rupees 2,485. Now subtract and find the loss. Clear? बहुत easy question है आपकी वर्कशीट में. You also can do it yourself. Simply यहाँ पे आपको cost price given था, selling price given था, and just you have to find the loss. Now in question number 8, again a dealer purchased an item for rupees 300 and sold it for rupees, sorry, this is not 300, this is 1,300. Once again, a dealer purchased an item for rupees 1,300 and sold it for rupees 1,360. Find his profit. Now what we have to find? The profit. Right? So formula of profit, SP minus CP. SP minus CP. क्या ज़्यादा इसमें? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तभी आपको प्रॉफिट होगा. So now CP equals to rupees 1,300 and SP equals to rupees 1,360. Now profit. सी अगर आपको ये भी गिवन होता बेटा कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस फाइंड करो, प्रॉफिट और
लॉस फाइंड करो. देन हाउ यू विल फाइंड, फर्स्टली आप ऑब्जर्व करो कि विच वन इज़ ग्रेटर, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है. अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, इट मीन्स देयर यू हैव टू फाइंड द लॉस. एंड इफ प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, प्रॉफिट. एंड इफ कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो वहाँ पे आप लॉस फाइंड आउट करोगे, राइट. सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एस पी माइनस सी पी. सो एस पी में क्या है आपका ₹1360 एंड सी पी क्या है ₹1300. सो प्रॉफिट इज ऑफ ₹60. क्लियर, प्रॉफिट क्या है ₹60. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा. इन बोथ द क्वेश्चंस 7 and 8 कॉस्ट प्राइस गिवन है आपको, सेलिंग प्राइस गिवन है. यू हैव टू जस्ट फाइंड द लॉस एंड द प्रॉफिट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 which is the second last question of this worksheet. A manufacturer sold an item to a wholesaler ₹2150. मीन्स एक होलसेलर को उसने सेल किया ₹2150. द होलसेलर सोल्ड द आइटम टू अ रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹230. द रिटेलर हैड टू सेल द आइटम एट अ लॉस ऑफ ₹30. So what price did the customer pay for the item? Now see, in this question there are 3 members. इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, जस्ट लिटिल बिट ट्रिकी है. 3 मेंबर्स इंक्लूड हुए. अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, प्रॉफिट लॉस या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के लिए सिर्फ 2 मेंबर्स होते थे, एक देने वाला और एक लेने वाला. देने वाले का क्या होता था, कॉस्ट प्राइस, और देने वाले के लिए वो क्या हो जाता, सेलिंग प्राइस, और लेने वाले के लिए वो कॉस्ट प्राइस, राइट. बट इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग वन है जो आपका वो है मैन्युफैक्चरर, मीन्स जिसने वो आइटम बनाया है, उसने वो आइटम सेल किया 2150 में. उसके बाद उसमें आता है होलसेलर, राइट. होलसेलर ने क्या किया, सोल्ड द आइटम टू द रिटेलर. होलसेलर ने वो जो आइटम है आपका, फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ₹2150. उसके बाद आता है आपका होलसेलर. होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर ने उसे सेल किया एट द आइटम टू द रिटेलर प्रॉफिट ऑफ ₹300. इट मीन्स इस होलसेलर ने जब रिटेलर को सेंड किया, होलसेलर के लिए तो ये क्या हो गया, सेम प्राइस. उसके बाद जब उसने रिटेलर को दिया, प्रॉफिट हुआ ₹230. सी द होलसेलर सोल्ड द आइटम टू द रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹230. सो इसमें ये क्या हो जाएगा, ₹2380. जो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस है वो 2380 था. होलसेलर का कॉस्ट प्राइस जो था वो ये था, और सेलिंग प्राइस जो था वो ये. अब रिटेलर के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसने इस अमाउंट में ये खरीदा है. उसके बाद द रिटेलर हैड टू सेल द आइटम एट अ लॉस ऑफ ₹30. और रिटेलर क्या करेगा, उसे कस्टमर को 30 के लॉस पे, मीन्स -30. सो इट मीन्स ₹2350. राइट, क्लियर. What price did the customer pay for an item? Customer has to pay ₹2350. Now, how you will write it? See, we will write the cost price of everyone. Firstly, the cost price of wholesaler. ₹2150, right. नेक्स्ट वन, रिटेलर. रिटेलर के लिए वो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया,
2150 plus profit is of 150 plus rupees 230, which is equals to rupees 2380, राइट। नेक्स्ट आता है आपका रिटेलर टू कस्टमर। तो कस्टमर के लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, रुपीज़ 2380 माइनस लॉस जो रिटेलर को हुआ है। रिटेलर ने कितने का लॉस किया है, 30 रुपीज़ का। सो इसका प्राइस क्या होगा, रुपीज़ 2350। क्लियर दिस क्वेश्चन। सो द कस्टमर पे रुपीज़ 2350 for the item. क्लियर दिस क्वेश्चन। बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है, आप ये नहीं कह सकते बहुत इजी है। बस यहाँ पे कन्फ्यूज़न कहाँ क्रिएट होगी, रिटेलर को जो होलसेलर ने अपने प्रॉफिट पे दिया, इट मीन्स रिटेलर के लिए ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। कस्टमर के लिए हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना था, सो दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज, a shopkeeper wants to mark his goods so that he gets a profit of rupees 20. If the cost price of an item is rupees 2300, at what price should he mark it? मीन्स क्या करना है, एक शॉपकीपर को मार्क करना है इसके गुड्स पे, सामान पे, कि उसको जो प्रॉफिट हो वो 20 रुपीज़ का हो। इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इज़ रुपीज़ 2300, सो एट वट प्राइस शुड ही मार्क इट। सो 20 का प्रॉफिट करना है, राइट। वट प्राइस शुड ही मार्क इट, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका सेलिंग प्राइस, राइट। सो देखो आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है एंड प्रॉफिट गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस, व्हेन द प्रॉफिट इज गिवन, सीपी रुपीज़ 2300, प्रॉफिट रुपीज़ 20। नाउ वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। और जब आपका प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और लॉस होता तो यहाँ पे क्या होता, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। रुपीज़ 2300 प्लस रुपीज़ 20, दिस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2320। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आइटम। एट what price should he mark it? He mark it at rupees 2320. So clear this worksheet 12. This is the last question of this worksheet. After this, our chapter 12 is over. So if anyone having any problem in chapter 12, you can comment and ask.